अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज जिशान बशीर। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉर्ट द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट 13 फ्रॉम बुक 5। देखते हैं कि एक्सरसाइज के क्या कंपोनेंट्स हैं। लेट्स डू इट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी सी कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सरसाइज। नाउ टर्न टू पेज 112। चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इंस्पायर्ड नईम टू स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज? Second is the right option. He was sorry for snakes dying from heat. What did Naim do after seeing the no tree place? 3 is the right option. He ran back to his village to collect bamboo shoots. What happened as the bamboo trees grew? First is the right option. They provided shade and brought insects. Now turn to page 113. What did Naim decide to do after creating a bamboo grove? Second is the right option. He decided to plant more trees. Write T for true and F for false statement. Naim planted bamboo in the no tree place because bamboo rose quickly. No, it's false. Despite facing challenges like floods and heavy rains, Naim kept planting trees. Yes, it is true. Naim's vision was to create only one green area in his village. It's false. Naim traveled across the world planting trees in different no tree places. Yes, it is true. Naim continues to plant trees. Yes, it is true. Answer the questions. Why did Naim choose to plant bamboo? Answer is because bamboo is strong to hold in the sand. Second question, what did Naim decide to do after creating a bamboo grove? Answer is he decided to make more tree places. Third question, how did Naim feel when he saw his bamboo grove? Answer is he felt very thrilled and decided to plant more. What was Naim's final goal? Answer is he wanted to turn all no tree places to tree places worldwide. Last question, why did Naim continue planting trees despite the challenges? Answer is because he was loyal to his mission and ambition. Think and answer. Cause and effect. Cause and effect are about how one thing can be reason for something else to happen. Cause and effect का मतलब है कि किसी भी एक चीज के लिए दूसरी चीज कैसे वजह हो सकती है. The cause is why something happened. Cause का मतलब है कि क्यों कोई चीज हुई. द इफेक्ट इज वॉट हैपन्ड, और उसका इफेक्ट क्या हुआ, यानी कि उसका नतीजा क्या निकला. फॉर एग्जाम्पल, कॉज नईम विटनेस्ड स्नेक सफरिंग फ्रॉम हीट. कॉज क्या बना कि नईम ने देखा सांपों को जो कि हीट में सफर कर रहे थे. इन द नो ट्री प्लेस, उस जगह पे जहाँ पे कोई दरख्त नहीं था. और उसका इफेक्ट क्या हुआ, नईम डिसाइडेड टू टेक एक्शन एंड प्लांट बैम्बू टू प्रोवाइड शेड एंड रिलीफ फॉर द स्नेक्स. कि उसने फैसला किया कि वहाँ पे वो बैम्बू प्लांट करेगा ताकि उनको साया और जगह मिल सके. कॉज द वंस नो ट्रीज प्लेस नाउ हैड मैनी बिग ट्रीज विद ब्रांचेस दैट रीच्ड द स्काई. ये कॉज बना जी कि एक वो जगह जहाँ पे कोई दरख्त नहीं था, अब वहाँ पे काफ़ी सारे दरख्त हैं. उसका इफेक्ट क्या हुआ, मैनी ट्रीज क्रिएचर्स केम टू नाइम्स मैनी ट्रीज प्लेस. उसका असर ये हुआ कि कई सारी मखलूक़ात वहाँ पे आने लगी जहाँ पे नईम की बहुत सारी दरख्तों वाली जगह थी. नाउ टर्न टू 114. गिवन बिलो आर सम एक्शंस सिचुएशंस. नीचे दिए गए कुछ काम हैं, सिचुएशंस हैं. रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ें. राइट द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ ईच एक्शन. हर एक्शन का कॉज और इफेक्ट हमने बताना है. फर्स्ट वन इज द बैम्बू ग्रोव ग्रू एंड इट अट्रैक्टेड इंसेक्ट्स. आंसर इज नईम ऑब्जर्व्ड the snake dying of heat. He planted some bamboos there. Second, Naim planted seeds and saplings. Answer is after making the sand fertile. C. Naim thought of transforming every no tree place into a forest. Answer is he got very good results out of his continuous efforts. These lines show the passage of time in the story. The river grew thin one summer and flooded in the next, sometimes bringing more sand. Heavy rains came and went. ये अल्फाज बताते हैं किसको, वक़्त को, यानी कि वक़्त के गुजरने को. Find two more instances where the author shows the passage of time without mentioning dates or टाइम फ्रेम्स. इट इज योर क्लास बेस्ड एक्सरसाइज. आपने सबक को पढ़ना है और इसी तरह के दो ऐसे और वाक़े इंस्टेंसेस या अल्फाज बताने हैं जिसमें वक़्त के गुजरने को जाहिर किया जा रहा हो बगैर वक़्त को बताए.
ठीक है, you can take guideline of your teacher as well. Big idea name story teaches us that one person's efforts can make a big difference. It reminds us to care for the environment and make more world better. नईम की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे किसी शख्स की जो कोशिशें हैं वो बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकती हैं। इससे हमें ये बताया जाता है कि कैसे किसी भी माहौल की हिफाजत की जा सकती है और दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। ब्रेनस्टॉर्म अ लिस्ट ऑफ थिंग्स वी ओनली यूज वंस इन आवर हाउस। अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए ऐसी लिस्ट बनाएं जिसमें हम ये बता सकें कि हम अपने घर में क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग्स और पेपर पैकेजिंग, यानी कि प्लास्टिक बैग्स और पेपर की पैकेजिंग। देन इन पेयर्स डिस्कस हाउ यू कैन रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज ईच आइटम। इसके बाद आपने बताना है कि कैसे आप इन चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना सकते हैं। लिस्ट ऑफ सिंगल यूज थिंग्स, आइडियाज टू रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज देम। इट इज़ योर क्लास बेस्ड एक्सरसाइज। आपने हर एक ने अपनी कॉपी के ऊपर ऐसी चीज़ को लिखना है जो आप एक बार इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग बैग। इसके बाद आपने बताना है कि आप शॉपिंग बैग से ऐसा क्या बना सकते हैं जो दोबारा इस्तेमाल के काबिल हो। यू कैन टेक गाइडलाइन ऑफ योर टीचर एज वेल एंड you can take guideline of your parents as well. Pronounce well weak forms of will not and shall not. Read and say the short form of will not and shall not. हम will और shall की जो short forms हैं उसको इस्तेमाल करेंगे जो कि हैं want और shan't. We shan't watch Markhors in Khyber Pakhtunkhwa when we visit it. फर्स्ट वन है जी कि वी शैल नॉट वॉच, इसको कन्वर्ट करेंगे वी शैंट वॉच मार्कोर्स इन खैबर पख्तूनख्वा व्हेन वी विजिटेड। हारिस विल नॉट राइट, हारिस वॉन्ट राइट। पाकिस्तान विल नॉट लूज, पाकिस्तान वॉन्ट लूज। इट विल नॉट रेन टुडे, इट वॉन्ट रेन टुडे। मेक टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन यूजिंग द वीक फॉर्म्स ऑफ विल नॉट एंड शैल नॉट इन योर नोटबुक। डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी अपनी कापियों पे विल नॉट और शैल नॉट बिल्कुल इन्हीं एग्जाम्पल्स की तरह आपने 2 या 3 फिक्रों में इस्तेमाल करना है और इनकी शॉर्ट फॉर्म्स को इस्तेमाल करना है, यानी कि वॉन्ट और शैंट को। नाउ टर्न टू पेज 115। वोकैबुलरी। अनजम्बल द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, देन फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिनोनिम्स इन द बॉक्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने अनजैम्बल करना है ब्रैकेट्स में दिए गए लेटर्स को, यानी कि इनको सही से असम्बल करना है और इन्हीं का जो सिनोनिम है वो चूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल शी बिगेन टू क्राई व्हेन शी हर्ड दैट शी वुडंट बी एबल टू गो ऑन हॉलीडे। अब क्राई उसने वीप किया, यानी कि PEWE को आपने सही करके लिखना है और आप लिखेंगे वीप। द फॉरेस्ट वॉज क्वाइट एट नाइट बट ड्यूरिंग द डे वन कुड हियर all kinds of noises. Rehan thought that the girl had a strange way of speaking. The animals move into the forest quickly. The whole forest was filled with strange creatures that I had never seen before. Sit in pairs, discuss the qualities Naeem had and fill in the word web. In your notebook, provide evidence फ्रॉम द नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने नईम की क्वालिटीज़ बतानी है जो हमने चैप्टर को पढ़ के ऑब्जर्व की हैं। फॉर एग्जांपल नईम इज़ हार्ड वर्किंग, लॉयल, फोकस्ड, परसेवरेंट, कंसिस्टेंट एंड विजनरी। रिप्लेस द वर्ड्स और फ्रेजेस इन बोल्ड विद द वंस गिवन बिलो। हमने जो बोल्ड में फ्रेजेस लिखे हुए हैं, जो अल्फाज लिखे हुए हैं, उनको इन अल्फाज के साथ चेंज करना है। आसिफ फाइनली केम टू हिज सेंसेस एंड गेव अप हिज प्लान to quit playing soccer. My father decided to take a better look at the painting before buying it. His shelves were laden with books that he had collected over the years. Despite the challenges, she decided to continue. She decided to keep on pursuing her dream of becoming a doctor. Her passion for music took root during her childhood years. जी तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि सारे कंपोनेंट्स आपने अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। जहां पे कोई दिक्कत आए आप अपने टीचर से रहनुमाई ले सकते हैं। मिलते हैं नए यूनिट के लिए अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।